Constitution Petition 46 of 2025, through which enforcement of an order by a committee constituted under Section 2. That petition is competent before this court, this bench. Objection. There are certain office objection raised by the office. My impression is that those objections were probably removed and petition is numbered. It is attached with your paper book. Objection साथ लगा दे क्योंकि कहा भी उस दिन आपको कोर्ट में यही था. At the time of hearing the above mentioned, this para 2 of the order, may I read? See your objection. order देखिए show me your order. It has been numbered. Yes, I think yes, you're right. It has been numbered. May I read para 2 of the order? Number lag gaya, you're right. Yeah. 46 of 2025. कॉल के बता दी. दूसरी डेट नहीं order. इनकी एप्लीकेशन तो निकाले ना जो. May I read para 2? Para 2 of the order. Your Lordship, at the time of hearing above mentioned constitution petition, Mr. Shahid Jamil Khan, the AC, appeared and stated that he has also filed a petition under Article 184(3) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, the Constitution, which is a matter connected with these petition. Office has raised the objection with regard to maintainability of his petition under Article 183 of the Constitution, and he has filed civil miscellaneous appeal against the order of the registrar. Prays that record be called from office and his case be heard together with the instant CPs. We have called the record of the said case. CM Appeal number 83 of 2024 was filed by Mustan Waz Khokar through Shahid Jamil Khan ASC. CM Appeal stand disposed of with the direction to the office to number the CP and fix for hearing today. The office objection will be decided by the court after hearing the learned counsel for the petition on the next date of hearing. You see, you have not filed any separate application. This is only a CPA before us. Lordship, there is an application, Lordship, that has been filed in CP 57. CP 57 that has not been numbered. Salahuddin AC is co-counsel in 57. Right, he has filed the petition that has not been numbered yet. Has been numbered. सवाल सुन ले. You're right that 47 CP number 46 is against the amendment. You have not filed any. It's not against the amendment, Lordship. Lordship, it's not against the amendment. The CP is for enforcement of an order and declaration by this honorable court that the decision dated 31st October 2024 by committee. Clause. Can you read your prayer clause on page हम 7? अभी ये आपके जो ऑफिस ऑब्जेक्शन है ना वो सुन रहे हैं. Lordship. नजर में ये रखिए कि बजाय इसके कि ये चैम्बर में आपकी अपील हेयरिंग होती. जी, जी, जी. हमने ये कहा कि बाकी लॉर्डशिप इसमें तो के बड़ा आपने सेटल कर दिया हुआ है. ऑब्जेक्शन यहाँ पे सुने जा सकते हैं और मैं उसको मैं आंसर भी कर सकता देखिए कि जो ऑफिस ऑब्जेक्शन है आपने वो अभी हूँ. उसमें सेटल्ड लॉ तो ये है कि रजिस्ट्रार हैज नो पावर कि वो कोई इस तरह का ऑफिस ऑब्जेक्शन, उसमें मैंने वो केस लॉ भी मेंशन किया है कि उसके पास ये पावर नहीं है कि वो जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड करे. तो क्लियर पढ़िए लॉर्डशिप, सीपी में. in the light of foregoing fact circumstances, it is most respectfully prayed that this honourable court may graciously be pleased to declare that decision of committee constituted under section 2 of PAPA directing fixation of pending petition before full court is binding and shall be implemented forthwith. Direct the respondent number 2 and all concerned authorities to immediately fix the pending petition challenging the 26th constitutional amendment before full court in compliance with the committee's decision dated 31st October 2024. Declare that any administrative act or explanation negating or obstructing the implementation of committee's order is without lawful authority and of no legal effect. Pass any other order deemed just and proper in the circumstances, Lord. ये आपकी मेन पिटीशन सिर्फ ये है कि उसको फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए. जो असल पिटीशन उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए. लॉर्ड जी, लॉर्ड समझने के लिए करो क्वेश्चन. और जो मेन पिटीशन जिसमें आप 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहेंगे वो अलग है. वो अलग है. ठीक है, आप कहते हैं कि वो वाली पहले इसके मैं ये वाला इसकी कॉज ही डिफरेंट है, इसलिए 184(3) में आए हैं कि एक कमेटी का फैसला है जिसको सेट असाइड नहीं किया गया किसी फोरम पे. दिस इज द क्रक्स ऑफ माय सबमिशंस. तो उसकी फेट डिसाइड होनी है कि इफ दैट इज एन ऑर्डर अंडर लॉ एंड दैट एग्जिस्ट, वेदर दैट हैज टू बी, एंड दिस कोर्ट will examine and decide whether that has to be implemented or not. इसलिए मेरी शुरू में भी रिक्वेस्ट थी कि अगर इसको पहले सुन लें तो शायद वो CMS में कुछ चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएं. वो आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने उसको डेट वाइज मैं उसको क्रोनोलॉजी में उसको करूँगा, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज सुनिए. ये वाला सवाल और पिटीशंस में भी है.
पिटीशन में नहीं है, इसकी पिटीशन अलग है, इसलिए रिमूव करें ऑफिस ऑफ डायरेक्शन लेटर आगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट और पिटीशन में भी है और सब नहीं होगा इसका फर्क कल अहमद ने नहीं दिया उसके रिटर्न आर्ग्यूमेंट में उसने कहा था मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें इसका कल वाले ने इसमें उसने दिखाया भी इसमें सेम This was his argument. तो वो क्या करें तो बाकी लोगों ने भी यही पॉइंट रेज किया किसी ऑर्डर पर रिलाई कर रहे हैं तो कैसे How many other petitioners have raised this point in their petitions? I think probably someone may have raised in his There, आपकी petition. petition में भी है, आपकी petition में भी है, दूसरी में भी, आपकी petition में भी है. You've all raised the same point of that letter and the decision of the committee. It's in my main petition. Right. Also, I want a separate CMA. ये देखें जमाल ये देखो बता रहे हैं, 4 लोगों ने सबने मेन पिटीशन में डाला जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन ये चारों कह रहे हैं नहीं सबकी पिटीशन में ये पॉइंट है तो हम ये कहेंगे ये मेंटेनेबल नहीं है बट उन पिटीशंस में हम सुन इसीलिए कह रहे हैं कि आखिरी में सुने, पहले सबको सुन लें फुल कोर्ट बनाने पे, तो लास्ट में इसको सुन लेंगे ताकि कंपोजिट शायद इसका आपको लास्ट में हम सुनेंगे बाकी मेरी सबमिशन उसमें भी है, मुझे इजाजत ये दें, इसका इम्पैक्ट जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंप्रेशन यही था कि आपको पहले भी वैसे कहा था कि आपको आखिर में सुनेंगे. मेरी लॉर्डशिप मैंने अर्ज ये वापस की कब आ रहे हैं? आपका शेड्यूल क्या है, कब जा रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं? जी आप कब बाहर जा रहे हैं, वापस कब आ रहे हैं? लॉर्डशिप मैंने तो 2 नवंबर में होना है बट दैट इज नॉट नहीं, कब नेसेसरी आई हैव वापसी- ऑलरेडी सेड वापसी कब है? वापसी उसके कोई 8-10 दिन बाद ही और होगी 10 दिन अदरवाइज बेंच अवेलेबल नहीं है, जब आप वापस आएंगे हम फ्रेश भी होंगे, आप हम वापस सुनें. लॉर्डशिप मैं तो आज भी फ्रेश हूँ कुछ मुझे अगर आप इजाजत दें मुझे आप इजाजत दें वैसे अगर मैं यहाँ पे आ ही गया हम चाह रहे हूँ हैं कि तो मुझे किसी भी कैपेसिटी में अगर आप इजाजत दे दें तो मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो अभी तक आप कह रहे हैं कि आंसर नहीं हो रहे तो आई प्रॉब्ली विल बी एबल टू कोई सीएम है तो बताइए. जी सीएम है वो सीएम है लेकिन कोई मिनिस्ट्रियल हिच आई है जिसकी वजह से वो उसको वो होना है अगर आप इसको और किसी सिविल को अपील के बाकी बजाय है? पिटीशन के साथ आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं. आपकी है सीएम. मैंने मेन पिटीशन में भी ये पॉइंट लिया हुआ है फिर मैंने सेपरेट सीएम भी इस पॉइंट हाँ, सेपरेट सीएम जितनी भी है वो आर्ग्यू हो रही है ना बाद अभी. में सुन लेंगे. ऑल लर्नेड मुझे काउंसिल एप्लीकेशन पे सुन ले मैं इस पिटीशन पे आर्ग्यू नहीं करता कौन सी application? मैं एप्लीकेशन में ये जो 57 में एप्लीकेशन दी अभी आप कहते हैं नंबर नहीं लगा उसके ऊपर. लॉर्डशिप ये तो मिनिस्ट्रियली आप ऑर्डर करेंगे तो वो भी 1 घंटे में लग के आ जाएगा वो तो इशू नहीं है लेकिन काउंसिल अवेलेबल है उसको सुनने का टाइम ना इस तरह वेस्ट करें. आपको एंड में सुनना है. आइए भंडारी साहब सीएम में देने वाले